Dear students, our today's topic is The Interview by Christopher Sylvester, and it is our second video on this chapter from the book Flamingo. तो आज हम इस इंटरव्यू का पहला हिस्सा पढ़ेंगे और उसकी एक्सप्लेनेशन उर्दू में देंगे. तो let us begin from page number 68. Let's start. हमारा पहला पार्ट है तो हम पहला पार्ट अब शुरू करने जा रहे हैं. First part, since its invention a little over 130 years ago, the interview has become a commonplace of journalism. अपने ईजाद के 130 साल से कुछ ज़्यादा अरसे में इंटरव्यू सहाफ़त में एक आम सी बात बन गई है. Today, almost everybody who is literate will have read an interview at some point in their lives, where from the other point of view, several thousand celebrities have been interviewed over the years, some of them repeatedly. आज के दौर में तकरीबन हर तालीम याफ्ता शख्स ने अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी किसी मौका पर इंटरव्यू को पढ़ा होगा. जबकि दूसरे नुक्ते नज़र से देखा जाए तो कई हज़ार मशहूर शख्सियात के कई बरसों में इंटरव्यू लिए गए होंगे. इनमें से कुछ शख्सियात के इंटरव्यू बार बार लिए गए होंगे. So it is hardly surprising that opinions of the interview, of its functions, methods and merits vary considerably. लिहाजा इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है कि इंटरव्यू से मुतल्लिक राय, इसकी कारगुजारी, तरीके और खूबियाँ काफ़ी हद तक मुख्तलिफ हैं. Some might make quite extravagant claims for it as being, in its highest form, a source of truth and in its practice an art. कुछ लोग इसके बारे में हद से ज़्यादा दावा कर सकते हैं कि यह अपनी आला सूरत में सच्चाई का ज़रिया और फन की एक सूरत है. Others, usually celebrities who see themselves as its victims, might despise the interview as an unwarranted intrusion into their lives, or feel that it somehow diminishes them, just as in some primitive cultures it is believed that if one takes a photographic portrait of somebody, then one is stealing the person's soul. दूसरे जिनमें आमतौर पर मशहूर शख्सियात हैं और अपने आप को इसके शिकार समझते हैं, वो इंटरव्यू को इसलिए नापसंद करते हैं कि यह उनकी ज़िंदगी में नामुनासिब मुदाखलत है, या वो ये महसूस करते हैं कि इससे उनकी हकारत होती है. यह ऐसे ही है जैसे कदीम तहजीबों में अगर किसी आदमी की तस्वीर बनाई जाती थी, वो यकीन करते थे कि वो उस आदमी का रूह चुराता था. Yes, Nepal feels that some people are wounded by interviews and lose a part of themselves. Yes, Nepal एक जहांदीदा मुसन्निफ थे ने अपने सफ़रनामे और अपनी दस्तकावेज़ी कामों में इस बात का इजहार किया है कि कुछ लोग इंटरव्यू से अपने आप को मजरूह महसूस करते हैं, यानी ज़ख्मी महसूस करते हैं और अपने आप का कुछ न कुछ खो देते हैं. Lewis Carroll, the creator of Alice in Wonderland, was said to have had a just horror of the interviewer, and he never consented to be interviewed. लुइस कैरल, जो एलिस इन वंडरलैंड का खालिक है, ये मशहूर किताब है बच्चों के लिए, के बारे में कहा जाता है कि वो इंटरव्यू लेने वाले से खौफ महसूस करता था. लुइस कैरल इंटरव्यू लेने वाले से खौफ महसूस करता था और वो कभी भी इंटरव्यू देने के लिए राज़ी नहीं हुआ, यानी वो इस बात के लिए कभी तैयार नहीं हुआ कि उसका इंटरव्यू लिया जाए, क्योंकि वो इंटरव्यू लेने वाले से बहुत ज़्यादा खौफज़दा होता था, उससे डर महसूस करता था. It was his horror of being lionized which made him thus
repel would be acquaintances, interviewers, and the persistent petitioners for his autograph, and he would afterwards relate the stories of his success in silencing all such people with much satisfaction and amusement. It was his horror of being lionized which made him thus repel would-be acquaintances, interviewers, and the persistent petitioners for his autograph, and he would afterwards relate the stories of his success in silencing all such people with much satisfaction and amusement. उसे बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल होने का खौफ था, जिसकी वजह से वो अपनी जान पहचान वालों, इंटरव्यू लेने वालों और मुस्तकिल साइलों को अपनी कलमी तहरीर देने को रद्द करता था, और बाद में वो ऐसे लोगों को बहुत ही तसल्ली और तफरीह के ज़रिए अपनी कामयाबी कहानियाँ बयान करके खामोश करता था. Rudyard Kipling expressed in much even more condemnatory attitude towards the interviewer. रुdyard किपलिंग ये जंगल बुक का मुसन्निफ है जो बच्चों के लिए एक मिसाली किताब दुनिया भर में मानी जाती है, ने इंटरव्यू लेने वाले से बहुत ही शदीद काबिल मलामत सलूक किया था. His wife Caroline writes in a diary for 14 October 1892 that their day was wrecked by two reporters from Boston. उसकी बीवी कैरोलीन अपनी डायरी में 14 अक्टूबर 1892 को लिखती है कि उनका दिन बोस्टन से ताल्लुक़ रखने वाले दो रिपोर्टरों ने बर्बाद कर दिया. She reports her husband as saying to the reporters, "Why do I refuse to be interviewed?" वो लिखते हैं कि उसके शौहर ने रिपोर्टरों से कहा था, मैं इंटरव्यू देने से क्यों इनकार करता हूँ. Why do I refuse to be interviewed? मैं इंटरव्यू देने से क्यों इनकार करता हूँ? Because it is immoral. क्योंकि ये एक गैर इखलाकी काम है. It is a crime, just as much of a crime as an offense against my person, as an assault, and just as much merits punishment. ये एक जुर्म है, ऐसा ही जुर्म जैसा किसी इंसान पर तशद्दुद करने का जुर्म और ऐसे ही सज़ा पाने का मर्तकिब. It is cowardly and vile. ये पस्त हिम्मती और हकीर काम है. No respectable man would ask it, much less give it. कोई भी काबिल एहतराम आदमी, इज़्ज़तदार आदमी इसके बारे में नहीं कहेगा. देना तो दूर की बात है, इंटरव्यू देना की तो दूर की बात है. Yet Kipling had himself perpetrated such an assault on Mark Twain only a few years before. इसके बावजूद रुdyard किपलिंग ने सिर्फ चंद साल कबल मार्क ट्वेन को खुद ऐसे ही तशद्दुद का शिकार किया था, यानी उसने मार्क ट्वेन का इंटरव्यू लिया था कुछ साल पहले ही, ये बातें बताने के बावजूद. H.G. Wells in an interview in 1894 referred to the interviewing ordeal but was a fairly frequent interviewee, and 40 years later found himself interviewing Joseph Stalin. H.G. Wells एक अंग्रेज़ नावलिस्ट, सहाफ़ी, समाजवादी और तारीखदान वो साइंसी अफसानों के लिए मशहूर थे, और उसकी मशहूर तसानीफ द टाइम मशीन, द इनविजिबल मैन और द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स हैं, ने 1894 में एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि इंटरव्यू करना एक तकलीफ दे कड़ी आजमाइश है. इसके बावजूद वो अक्सर इंटरव्यू देता था और 40 साल बाद खुद भी जोसेफ स्टालिन का इंटरव्यू लिया था. यहाँ मैं आपको बताऊं कि जोसेफ स्टालिन एक अजीम रूसी इनकलाब पसंद और मुतहरिक सियासी मुंतजिम थे. Saul Bellow, who has considered to be interviewed on several occasions, nevertheless once described the interview as being like thumbprints on his windpipe. Saul Bellow, जो एक ड्रामा निवीस और नावलिस्ट थे, उसे 1976 में लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था. उसने
इन साल बेलों ने बहुत से मौके पर इंटरव्यू देने के लिए रजामंदी दिखाई थी, लेकिन फिर भी उसने एक दफ़ा इंटरव्यू के बारे में ख्याल जाहिर किया था कि जैसे उसकी सांस की नली दबाने के मुतरादिफ है, यानी इंटरव्यू देना दम घुटाने वाला काम है. Yet, despite the drawbacks of the interview, it is a supremely serviceable medium of communication. इंटरव्यू की इन खामियों के बावजूद इंटरव्यू तबादला ख्याल का इंतहाई मौजून ज़रिया है. These days, more than at any other time, our most vivid impressions of our contemporaries are through interviews. आजकल के दौर में दीगर अवकात के मुकाबले में ये हमें हमारे हम असर अशखास के बारे में काफ़ी ज़्यादा नुमाया नकूश मुहैया करते हैं. काफ़ी ज़्यादा नकूश मुहैया करते हैं. Dennis Bryan has written almost everything of moment reaches us through one man asking questions of another. Because of this of another, डेनिस ब्रायन ने लिखा है करीबन वक्त की हर चीज़ हमारे पास एक आदमी के ज़रिए दूसरे से सवालत पूछते हुए पहुँचती है. Because of this, the interviewer holds a position of unprecedented power and influence. यही वजह है कि इंटरव्यू लेने वाले का मकाम बहुत ही ज़्यादा अनोखा ताकत और असर का बहुत ही अनोखी ताकत और असर का हामिल होता है. Dear students, this was the explanation in Urdu of the first part of the 7th lesson of your Philemic textbook, The Interview by Christopher Sylvester. I hope you would have understood it very, very well. But before I close, please subscribe to my YouTube channel for more explanations and more videos on English. With this, we end today's topic, and in the next video, I will give you the explanation of the second part of this chapter, The Interview by Christopher Sylvester. A good day. Thank you.